ایک ایسی طاقتور قوم جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، آخر ایسی کون سی سنگین خطا تھی جس نے ان کی عقلوں پر پتھر رکھ دیے تھے؟ جب لگاتار 950 سال تک ایک نبی کی آہوں اور درد بھری پکاروں کا مذاق اڑایا گیا، تو کیا خدا کا قہر ہمیشہ خاموش رہنے والا تھا؟ کیا انہیں واقعی یہ گمان تھا کہ ان کے اونچے پہاڑ اور ان کی جھوٹی طاقت انہیں اس کائنات کے مالک کے عذاب سے بچا لیں گے؟ مگر جب صبر کا وقت ختم ہوا اور آسمان اور زمین پھٹے، تو پھر جو خوفناک عذاب ان پر نازل ہوا وہ آپ کی روح کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک قوم جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کا سب سے بہترین حصہ عطا فرمایا تھا، جہاں ٹھنڈی اور نرم ہوائیں چلتی تھیں، جہاں زرخیز مٹی سے فصلیں لہلہاتی تھیں، جہاں صاف اور شفاف ندیاں بہتی تھیں، اور یہ لوگ ان کے جسم آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور، ان کی عمریں کہیں زیادہ لمبی اور ان کی زندگی خوشحالی سے بھری ہوئی، مگر ان سب سے بڑھ کر ان کے پاس ایک عظیم نعمت تھی، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ ایک ایسا نبی جو ان کے درمیان رہا، جو انہیں سیدھا راستہ دکھاتا رہا، جو انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤں۔ مگر سوچیں ذرا، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم، صبح سے شام تک ایک ہی آواز ان تک پہنچتی رہی۔ بے شک عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور وہی سب خالق و مالک ہے۔ اے میری قوم، صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز اور کھلی دشمنی۔ اے نوح، تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی لیے تو ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں، چہروں پر غصہ، آنکھوں میں نفرت۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں۔ نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ موجود ہے، تو ابھی فوراً عذاب لے آؤ۔ تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں۔ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ موجود ہے، تو ابھی فوراً عذاب لے آؤ۔ ہماری زندگی، ہمارا اختیار، تم ہمیں بدل نہیں سکتے۔ ہماری زندگی، ہمارا اختیار، تم ہمیں بدل نہیں سکتے۔ 950 سال، 3 نسلیں، 4 نسلیں، 5 نسلیں گزر گئیں۔ دادا کو سنتے تھے، باپ کو سنتے تھے، پوتوں نے بھی سنا، مگر کسی نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی ہار نہیں مانی۔ وہ پکارتے رہے، سمجھاتے رہے، دعا دیتے رہے، مگر وہ لوگ، انہوں نے یہ بھلا لیا تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اور پھر ایک دن زمین اور آسمان دونوں کو ایک ہی حکم مل گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ قوم جس کے پاس سب کچھ تھا، جن کے پاس اللہ کا نبی تھا، وہ کیسے اتنی گمراہ ہو گئی؟ یہ کہانی رات کے اندھیرے کی طرح اچانک نہیں آئی، یہ صبح کی دھندلی روشنی کی طرح آہستہ آہستہ آئی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے درمیان کچھ بہت نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ یہ اللہ کے سچے بندے تھے، نیکی کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، اللہ کی عبادت میں مشروف رہنے والے۔ پھر ایک ایک کر کے یہ نیک بندے فوت ہو گئے۔ لوگ غمگین تھے، ان کی یاد انہیں ستاتی تھی۔ کسی نے کہا، کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں تاکہ جب بھی دیکھیں تو نیکی کی یاد آئے، ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں۔ شروع میں صرف تصویریں تھیں، پھر کسی نے کہا تصویر سے بہتر تو مجسمہ ہے، اسے دیکھ کر زیادہ یاد آئے گا، تو مجسمے بن گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ ان مجسموں کے سامنے کھڑے ہونے لگے، ان کی تعظیم کرنے لگے، اور تعظیم سے بڑھ کر سجدہ کرنے لگے، اور جب سجدہ شروع ہوا تو پھر عبادت شروع ہو گئی۔ یہ شیطان کا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک حربہ ہے، آہستہ آہستہ گمراہ کرنا، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، یہاں تک کہ انسان اندھیرے میں کھو جائے۔ پھر یہ اللہ کا ذکر کیوں بار بار؟
हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। अब कौम दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पुकार रहे थे कि ये पत्थर हैं, ये तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और दूसरी तरफ कौम के लोग जो अपनी जिद पर अड़े हुए थे, हम उन बुजुर्गों की ताजीम करते हैं, इसमें क्या बुराई है? यही तो हमारे दरमियान बरकत का जरिया है। जब से ये मुजस्समे बने हैं, हम खुश हैं। नूह हमें इनके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए कि हम उसकी बात कम सुनते हैं और अपने बुजुर्गों को ज्यादा मानते हैं। हमारे बुतों ने हमें कभी नुकसान नहीं दिया, फिर ये अल्लाह का जिक्र क्यों बार बार? हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा गलत नहीं हो सकते। कुरान मजीद ने उनके अल्फाज यूं नकल फरमाए और कहा, उन्होंने अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न वद को, न सुआ को, न यगूस को, न याऊक को और न ही नस्र को। पत्थर के बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न बोलते थे, मगर उनकी कौम, उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह की बात उन तक पहुंचती ही नहीं थी। जब दिल पत्थर बन जाए तो पत्थर भी माबूद बन जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसा शख्स जो अपनी कौम के सामने खड़ा हुआ, बुलंद आवाज से, खुले अल्फाज में, बगैर किसी डर के, मैं तुम्हारे लिए वाज़े तौर पर खबरदार करने वाला हूं। मेरा पैगाम साफ है, मेरी बात सीधी है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो वरना अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। ये कोई मामूली दावत नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन में बुलाया, रात में बुलाया, बाजारों में जाकर पुकारा, घरों के दरवाजों पर जाकर समझाया, मजालिस में बैठकर नसीहत की, कभी इलानिया सबके सामने खड़े होकर, कभी पोशीदा तन्हाई में, नरमी से दिल को छूने वाले अल्फाज में, कभी सख्ती से, ताकि उनके दिल जाग जाएं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। ये पत्थर तुम्हें क्या देंगे? मैं तुमसे इस दावत का कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं तुमसे माल मांगता हूं, ना इज्जत, ना कोई मकाम। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। और फिर वो उन्हें तरगीब देते, मोहब्बत से समझाते कि तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी औलाद में बरकत होगी, तुम्हारे बागात फल फूल से भर जाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी तुम्हारी होगी। मगर कौम ने क्या जवाब दिया? हम तुम्हें सिर्फ एक आम आदमी समझते हैं, तुम हम जैसे ही हो, खाते पीते हो, चलते फिरते हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पीछे तो हमारे गरीब और कमजोर लोग चले गए, वो जिनके पास न माल है, न ताकत, न अक्ल। हम तो कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे। अगर वाकई अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो हम में से किसी बड़े सरदार को ही नबी बना देता। तुम तो बस एक मामूली आदमी हो, तुम हमें अपने बराबर करना चाहते हो, ये हमें कबूल नहीं। 950 साल। कभी कोई दिल नर्म होता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता तो सरदार आकर उसे डरा देते, धमका देते, वापस खींच लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम थके नहीं, मायूस नहीं हुए। वो रात को उठते, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते, आंसू बहाते और दुआ करते, ऐ मेरे रब, मैंने दिन रात पुकारा मगर मेरी पुकार ने उन्हें और दूर कर दिया। जब भी मैंने उन्हें बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं, अपने कपड़े ओढ़ लिए और अपनी जिद पर अड़ गए। मगर फिर भी वो नहीं रुके। सुबह होती और वो फिर से निकल पड़ते कौम को समझाने। एक नबी का सब्र, एक नबी की मेहनत। मगर जब दिल पत्थर बन जाए तो क्या हो सकता है? असल मसला सरदार थे, वो लोग जिनके पास माल था, ताकत थी, असर और रसूख था, वो लोग जिन्होंने अपनी बर्तरी को अपना खुदा बना लिया था। जब भी कोई आम आदमी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगता तो सरदार फौरन आ जाते। इसकी बात में न पड़ना, यह तुम्हें बहका रहा है। इस बात में ज्यादा मत पढ़ो वरना तुम्हें मुश्किल हो सकती है। अगर तुमने उसकी पैरवी की तो शायद तुम्हें हमारी मजलिस से दूर रहना पड़े। सोच लो अच्छी तरह, अगर तुम उसकी पैरवी करोगे हो सकता है तुम्हें अपनी जगह और लोगों से दूर रहना पड़े। और ये धमकियां काम करती थी। लोग डर जाते और वापस अपनी जगह पर आ जाते। कोई अपने दोस्त से चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है कि नूह सच कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है। इनकी बातों में वजन है, लेकिन फिर हमारे सरदार हमें समझा देते हैं और मैं सोचता हूँ शायद मैं गलत हूँ। अगर हमने अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया तो हमारी कौम हमें क्या कहेगी? अगर हमने अपने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया
तो लोग हमें क्या कहेंगे? ये वही खौफ था जिसने उन्हें हक से दूर रखा। साल गुजरते गए, सदियां गुजरती गईं। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल सफेद हो चुके थे, मगर उनका हौसला अब भी बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ने उनके दिल में एक यकीन डाल दिया था कि ये कौम अब बदलने वाली नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना दिल खोल दिया। ये शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी। ऐ मेरे रब, मैं थक नहीं गया, मगर ये लोग नहीं बदलेंगे। और इसी रात आसमान से एक फैसला उतर आया। वो रात थी जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के लिए बद्दुआ की। 950 साल का सब्र खत्म। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। आसमान से हुक्म नाजिल हुआ, नूह, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में अब हमसे बात मत करो, उनका फैसला हो चुका। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन तामीर शुरू कर दी। खुले रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक पानी नहीं था, वहां लकड़ियां जमा की जाने लगीं। दिन हो या रात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम काम में मशरूफ रहते और कौम के सरदार गुजरते और जोर से हंसने लगते। रेगिस्तान में कश्ती, नूह तुम वाकई पागल हो गए हो, देखो बूढ़ा हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ा तंज एक बूढ़े सरदार ने किया, नूह तुमने तो 950 साल से अजाब का दर्स दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ, और अब ये कश्ती तमाशा बना दिया अपना। लोग हंसते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से काम करते रहे। कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल थी, सबसे नीचे जानवरों के लिए, दरमियान में इंसानों के लिए और सबसे ऊपर परिंदों के लिए। हर कील जो ठोकी जाती वो कौम की तबाही का ऐलान थी, मगर उन्हें क्या खबर, वो अपनी दौलत में मगन थे। उन्हें नहीं मालूम था कि हर लकड़ी का तख्ता उनकी मौत का पैगाम था। कश्ती तैयार थी और फिर एक दिन आसमान बदलने लगा। दूर उफक पर स्याह बादल जमा होने लगे, हवा तेज और खौफनाक हो गई, लेकिन कौम अब भी अपनी दुनिया में मशरूफ थी। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में, जहां एक पुराना तनूर था, अचानक पानी उबलने लगा। ये निशानी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने साथियों को पुकारा, जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, कश्ती में सवार हो जाओ। खबर फैली तो लोग देखने आए। एक सरदार हंसते हुए बोला, देखो नूह के तनूर से पानी निकलेगा, ये कैसा अजाब है। मगर अगले ही लम्हे आसमान गरजा, बादल फटे और ऐसी बारिश शुरू हुई जैसे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए हों। साथ ही जमीन फटने लगी, हर तरफ से चश्मे फूटने लगे, ऊपर से बारिश, नीचे से पानी। अब लोगों की हंसी थम गई, खौफ उनके चेहरों पर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों और हर किस्म के जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया। जब सब सवार हो गए तो कश्ती के दरवाजे बंद हो गए। बाहर लोग दौड़ने लगे, नूह हमें भी ले चलो, हम गलत थे। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। पानी बढ़ता गया, पहले तखनों तक, फिर पहाड़ों तक। बड़ी खौफनाक लहरें जो पहाड़ों जैसी ऊंची थीं, कश्ती उन पर तैरने लगी। बाहर सिर्फ पानी था और तबाही थी। कौम जो हंसती थी अब डूब रही थी। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक थी। कश्ती की खिड़की से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, दूर उनका अपना बेटा पहाड़ की चोटी की तरफ भाग रहा था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, अल्लाह की पनाह में आ जा। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ी लहर आई और बेटा गायब था। वो डूबने वालों में हो गया। तूफान जारी रहा, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। बारिश रुक गई, पानी उतरने लगा और कश्ती जूडी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाहर निकले और शुक्र का सजदा किया। ये नई जिंदगी का आगाज था। अब सवाल यह है कि आज हम कहां हैं? आज हमारे बुत क्या हैं? पत्थर के बुत नहीं, आज हमारे बुत हैं तकब्बुर, शोहरत, दौलत और करियर की दौड़। आज का इंसान कहता है कि अभी जवानी है, मजे कर लूं, बाद में देख लेंगे। कौमे नूह भी यही सोचती थी। आज हमारी कश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, तौबा और कुरान। ये वो कश्ती है जो हमें बचाएगी जब आखिरत का तूफान आएगा।
कौम नूह ने मौका ज़ाया कर दिया। हमें कितना मौका मिला है हम नहीं जानते। क्या हम तैयार हैं? याद रखें, अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है।